Dear friends, again welcome to video lecture series on सर्विंग एंड जियोमेटिक्स. हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं लेसन 4 के लिए. टुडे वी विल सी द लेसन 4 रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. In previous lecture we have seen that what is actually remote sensing, then we have seen some of the advantages of remote sensing, and then we have seen that what are the 6 distinct stages in the remote sensing. अब ये रिमोट सेंसिंग में जो हमने दो टाइप उसके देखे, पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग. इन ऑल दिस वॉट एवर द सेंसर इज सेंसिंग द डिफरेंट डाटा, दैट ऑल दिस इज हैपनिंग बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इस लेसन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. सो हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे सूरज से आ रहा है वो पूरे अर्थ सरफेस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है और वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो सूरज से हमारे अर्थ पे आ रही है. सो इन दिस सिस्टम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द रिफ्लेक्टेड इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए उस ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड और इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हमको मेजर करना है. एंड फॉर दिस पर्पज we are using the various sensors. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन या इमिटेंस या जो रेडिएशन है ये समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है इसको हमको समझना पड़ेगा. सो इंटरैक्शन बिटवीन द मैटर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, that is what interaction is that? Absorption, penetration और reflection, that we need to understand. तो हमें ये समझना है कि किसी मैटर के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरता है, so that is called as incident radiation. So that how it is get absorbed, how it is get penetrated or how it is get reflected, and how much amount of energy is get emitted from that object, that we are interested in measuring. The sunlight transmission through the atmosphere is affected by the absorption and the scattering of the atmospheric molecules and the aerosols, and then it reaches to the earth surface, and then when it falls on the object it was get reflected, it was get absorbed, or it was get penetrated, or some of the energy can get emitted. So already in earlier lectures we have seen that this energy is coming from that electromagnetic energy coming from the sun. So here that we have already seen that this electromagnetic energy is sum of that all these three types of reflected, scattered, absorbed or transmitted energy. So this incident radiation is equal to absorbed radiation plus scattered radiation plus reflected radiation or transmitted radiation. So that we have to understand, and for that we will try to understand what exactly the electromagnetic spectrum is there. In the passive remote sensing system we know that the electromagnetic energy is coming from the sun. It is falling on the whole all the surface of the earth. So earth surface is having the different features, and there are different objects are there like building, like shrubs, grasses, and then trees or some ground, barren land, then water bodies, and different types of objects are there. Now these different objects interacts differently with this electromagnetic energy coming from the sun, and that energy get reflected, some energy get emitted from this object, and then it reaches to the sensor. And here on the sensor we understand all that form of that electromagnetic energy. So we have to understand into details that how this electromagnetic energy is. So this is, now we have to understand electromagnetic wave. What is electromagnetic wave? जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सूरज से आ रही है ऐसा हम लोग बोल रहे हैं. So what is that? It is electromagnetic wave. So here you can see that the figure shows the electromagnetic wave pattern in which the electric component are vertical
एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आर हॉरिजॉन्टल। इस डायग्राम में अब आप देखेंगे, सपोज नाउ द इलेक्ट्रिक एनर्जी और electromagnetic wave is traveling in this direction. So this is the direction of transmission of the electromagnetic wave. तो यहाँ पे आपकी जो इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसे इस फॉर्मेट में, सो साइनोसॉइडल वेव में इस प्रकार से वो आगे आगे प्रोपेगेट करते जाएगी. सो दिस इज ए वन फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म विच इज इन वर्टिकल प्लेन, एंड दिस वर्टिकल component of this electromagnetic wave that is referred as electrical component or electrical energy. And then another is magnetic component. So this magnetic component is horizontal. So when this electromagnetic wave is traveling in this direction, so then the magnetic component of this is like this in the wave format in the horizontal fashion. So magnetic component is, magnetic field is fluctuating or transmitting in this direction in the sinusoidal format in the magnetic in the horizontal plane, and in the vertical plane this electrical component is traveling. So in electromagnetic wave there are two components, one is vertical component, that is electrical component, and another is horizontal component, that is magnetic component. So there are electric field and magnetic field in vertical and horizontal direction, and then this transmission is having a particular wavelength. So this electromagnetic wave is having particular wavelength. Now here what is this electrical component is there, this is in the vertical plane, this is in a vertical plane. So electromagnetic energy is in the form of wave and which is in the vertical plane. So this plane, vertical plane, this plane is called as plane of polarization. This plane is called as plane of polarization. So we have to understand that this electromagnetic wave consists of electric component which is in the vertical plane, and that plane is referred as plane of polarization, and there is another plane which is perpendicular to this electric component, that is horizontal, and that is magnetic component of this, and this it is having the particular wavelength. Now this transmission takes place, transmission of electromagnetic wave takes place with the speed of light, that is c is equal to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. तो इतने स्पीड से ये ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कमिंग फ्रॉम द सन, दे आर रीचिंग टू द अर्थ at the speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Now if suppose f is the frequency in hertz, if f is the frequency in hertz, then the wavelength of this transmission is lambda is equal to c divided by f. तो ये जो wavelength है, ये wavelength का फार्मूला हो जाएगा हमारा c divided by f, that is c is the speed of the transmission or that is the speed of the light, and f is the frequency in hertz. So here this wavelength we can measure in micrometer. This wavelength we can measure in micrometer. So for any electromagnetic wave there is a speed of transmission that is equal to light, speed of light, and it is having some frequency. So depending upon the frequency this wavelength changes. So electromagnetic wave जिस frequency से आ रही है उस फ्रीक्वेंसी से उसकी वेवलेंथ जो है वो अलग अलग चेंज होगी. सो दैट इज वी हैव टू फर्स्ट रिमेंबर. देन वी हैव टू सी दैट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 raised to power 8 पर मीटर सेकंड इन ए हार्मोनिक पैटर्न. जैसा कि मैंने आपको बताया वो वेव फॉर्मेट में हार्मोनिक पैटर्न में वो ट्रैवल हो रही है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स. ऑलरेडी वी हैव सीन दैट equally and repetitively spaced in the time. So with respect to time they are having sinusoidal format, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उसका वर्टिकल प्लेन में ट्रैवल कर रहा है और मैग्नेटिक कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रैवल कर रहा है. सो ऑलरेडी वी हैव सीन इट हैज टू फील्ड्स, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर इज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ बीइंग ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एक में को परपेंडिकुलर में है और दैट इज ट्रैवलिंग साइनोसॉइडली with the speed of 3 into 10 raised to power 8, and that is called as electromagnetic energy.
सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रैवल करती है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कंसिस्ट ऑफ द फोटॉन्स. So in any electromagnetic wave, there are photons having the particle-like properties such as energy and momentum. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटॉन्स है जो एनर्जी कंटेन करते हैं और उसका कुछ मोमेंटम होता है, यानी उसको एक मूवमेंट होती है, स्पीड होती है. सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इट ट्रैवल्स फ्रॉम द सन एंड इट फॉल्स ऑन द वेरियस ऑब्जेक्ट्स. नाउ वंस दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज कमिंग, here we have to understand that this electromagnetic radiation can be treated as a photon. As earlier we have seen, it consists of the photon. So this electromagnetic radiation can be treated as photon or a light quantum with energy E is equal to h into v. तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अंदर कितनी एनर्जी होती है? सो दैट E is equal to h into v, where h is the Planck constant and v is the frequency of that electromagnetic wave. So if you know the frequency of that wave and h is the Planck constant, that value is known to us, so we can calculate the energy contained into that electromagnetic wave. तो हम लोग वो एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. So now electromagnetic radiation has a fundamental properties and behaves in a particular way consisting of an electric field E, so that E is equal to this much, which varies in the magnitude. अब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी अलग अलग हो सकती है because the frequency may change for that wave, frequency may change for that wave, and in a direction perpendicular to the direction in which the radiation is traveling. तो जो डायरेक्शन है, ट्रांसमिशन की डायरेक्शन ऐसी जा रही है, तो उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में उसकी एनर्जी की प्लेन होता है, फील्ड होता है. सो देयरफॉर दिस ट्रैवलिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ओरिएंटेड इन द राइट एंगल टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ऑलरेडी वी हैव सीन इन द डायग्राम. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि इस डायरेक्शन से ट्रांसमिट कर रही है तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा और उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो इन दिस वे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस. नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर मे बी ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव containing electromagnetic energy which is having two components, that is electric field and magnetic field, it is falling on the object. So then it was get radiated from that object, so it is called as electromagnetic radiation. So the photoelectric this radiation we have to understand. For that, this photoelectric effect can be explained by considering the electromagnetic radiation as composed of the particles. So as the electromagnetic waves contain some photons and they are coming with the speed of light and falling on the object, they are get radiated from that object. So again that there are four elements of this electromagnetic radiation. तो जो electromagnetic radiation जो ऑब्जेक्ट से निकल रहा है उसके अंदर फोर कंपोनेंट होंगे. सबसे पहला तो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, यानी जिस वेवलेंथ की इंसिडेंट एनर्जी वहाँ पर आई उससे कौन से वेवलेंथ की वहाँ पर रेडिएट हो रही है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वन इज द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, अदर इज ट्रांसमिशन डायरेक्शन. सो यहाँ पे इस डायरेक्शन से आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो किस डायरेक्शन से वो ट्रांसमिट होंगी, दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. And then what is its plane of polarization? So already we have seen that the electric component is in the vertical plane. So that vertical plane is called as plane of polarization. So radiation जो हो रहा है उसका भी plane of polarization क्या है? That we have to understand. And then the amplitude also we have to understand. This amplitude means the magnitude of the oscillating electric field. Electric field कम ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे. सो पर्टिकुलर टाइम लैप्स के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम ज़्यादा हो सकता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. सो वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग दिस फोर थिंग्स. रिमोट सेंसिंग के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सन से आ रही है, जो अर्थ के ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, वहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है उस रेडिएशन के चार चीज़ें, यानी और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कितनी है, उस रेडिएशन का ट्रांसमिशन की डायरेक्शन कौन सी है, उस रेडिएशन का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा है,
और उस रेडिएशन का एम्पलीट्यूड क्या है, ये हम लोग गिनने के लिए इंटरेस्टेड है. सपोज इफ वी मेजर ऑल दीज थिंग्स, then we can understand the feature of the earth or various features we can sense by processing that data. So you can see that we are interested in recording or in sensing the frequency or wavelength of the electromagnetic radiation, then transmission direction of the electromagnetic radiation, जो radiation electromagnetic radiation object से निकल रहा है उसकी transmission की direction क्या है, then जो amplitude है उसका, that is the magnitude of oscillating the electric field, उसको भी हम लोग समझना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन उसका क्या है ये भी हम समझना चाहते हैं. सपोज वी कलेक्ट दिस डाटा विद द हेल्प ऑफ सेंसर, सो उससे हम लोग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो हाउ दैट कैन बी डन, सपोज डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस वेवलेंथ वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट एग्जैक्टली द वेवलेंथ इज, वेवलेंथ कौन सी है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं. और वी कैन यूज दिस डाटा दैट इज बाय यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट, सो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है क्या वो भी हम लोग पता कर सकते हैं. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डॉपलर इफेक्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द radiation, electromagnetic radiation. Also similarly this frequency is again containing some radiant energy and wavelength. तो इसको भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रेडिएशन की एनर्जी कितनी है और उसके हिसाब से वेवलेंथ हमें कौन सी मिली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की. सो बाय मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वी कैन आइडेंटिफाई द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज देयर और नॉट, और how much radiation energy is reflected by the object. तो एनर्जी कितनी रिफ्लेक्ट हो गई, रेडिएशन एनर्जी कितनी है, रेडिएंट एनर्जी कितनी है वो भी हम लोग गिन सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी से. नाउ सपोज वी अंडरस्टूड व्हाट इज द ट्रांसमिशन डायरेक्शन. सो ट्रांसमिशन डायरेक्शन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका लोकेशन कहाँ पे है या उसका शेप कैसा है, ये समझने के लिए हमें ट्रांसमिशन की डायरेक्शन जो है वो काम में आएगी. इसी प्रकार से एज वी मेजर द एम्पलीट्यूड, सो दैट एम्पलीट्यूड कैन बी ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड हाउ मच रेडिएंट एनर्जी इज रेडिएटेड एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन. सो फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड, एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाई दिस देर इज a change in the oscillation of the magnetic field. So again it depends upon the shape or the location of the object from where this radiation is coming. So that again you can understand the shape or the radiant energy of that. And similarly, if you know the plane of the polarization, then that will be help us to identify the geometric shape of the object. So इस प्रकार से ये जो 4 पैरामीटर्स है ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हम लोग सेंस करना चाहते हैं by using the remote sensing technology, and so that we will be able to measure all these things, or we will try to identify the geometric shape of the object, location of the object, shape of the object, then what is the radiant energy into that, and what is the motion of that object is there or not. So by using these properties of the electromagnetic radiation, we try to understand what the object is on the earth. Here the square of the amplitude is proportional to the energy transmitted. So here again you have to understand that this amplitude यदि आपने measure कर लिया तो आपकी energy transmitted कितनी है ये आप तुरंत निकाल सकते. So therefore we have to sense the amplitude of the electromagnetic radiation. So then you can measure the energy transmitted from the object, so that you can understand what the object is. तो कितने object ने energy absorb कर ली, so that also you can identify. So here the energy radiated from an object is called as radiant energy, as already we have seen that how much energy is radiated, that is called as radiant energy. So incident energy यानी incident radiation कितना है और उससे reflected हुआ वाला radiant energy कितनी है ये हम लोग remote sensing से पता करते हैं. Here the plane including the electric field is called as the plane of polarization, and as already we have seen that the plane of polarization, if we measure or if you know by using the sensor, then we can identify the geometric shape of the object. तो किसी ऑब्जेक्ट से आने वाले अलग अलग लोकेशन के डाटा को उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को समझ के उसका शेप कैसा है
ये हम पता कर सकते हैं with the help of processing the data collected by remote sensing. So in this way, by collecting the data of the electromagnetic radiation, we are trying to understand to or know the information about the various features of the object. अलग अलग ऑब्जेक्ट के क्या फीचर है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये डाटा हम लोग कलेक्ट करके। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग स्पेक्ट्रम में आती है। अलग अलग स्पेक्ट्रम का मतलब है अलग अलग बैंड, और एक रेंज है कि इस रेंज के अंदर यदि वेवलेंथ होंगी तो उसको एक अलग नाम दिया जाएगा उस वेव को। इस प्रकार से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस प्रकार की अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी होती है। सो हियर द विजिबल लाइट इज द मोस्ट ऑब्वियस मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हम लोग आंखों से अलग अलग कलर देखते हैं, तो ये कलर हमारा किस पे डिपेंडेंट है, जो विजिबल लाइट, जो सूरज की रोशनी गिर रही है उस रोशनी में से कुछ जो वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब हो जा रही है, और जो रेडिएट हो रही है वो हमारे आंखों तक पहुंच रही है, और इसीलिए फिर वो ऑब्जेक्ट हमको अलग अलग कलर का दिखाई देता है। तो एक विजिबल जो वेवलेंथ की रेंज है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, उसके अंदर अलग अलग कलर हो सकते हैं। उसमें से जिस वेवलेंथ की एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाएगी तो उसको तो हमको कुछ करना नहीं है, लेकिन जो रेडिएट होगी वहाँ से, उस रेडिएशन एनर्जी रेडिएट हो रही है वो हमारे आंखों तक पहुँच रही है, और इसीलिए हम लोग उसको ऑब्जेक्ट का अलग अलग कलर हम लोग देख पाते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस वेवलेंथ, यदि हम लोग वेवलेंथ की बात करते हैं तो वी कैन मेजर दैट वेवलेंथ इन द माइक्रोमीटर। So if the wavelength of the electromagnetic energy is more than 10 raised to power minus 6 micrometer, so it is called as cosmic ray. 10 raised to power minus 9 micrometer यदि wavelength है तो वो cosmic rays हो जाएंगे। Then 10 raised to power minus 6 micrometer, so they are called as gamma rays. Then some wavelength are there that is from 10 raised to power minus 4. So they are called as X-ray. So you can see cosmic ray having very short wavelength 10 raised to power minus 9, gamma rays 10 raised to power minus 6, X-ray 10 raised to power minus 4 micrometer. Then there is one ultraviolet wavelength. So this ultraviolet wave spectrum जो है, here it is having the wavelength of 10 raised to power minus 1. 10 raised to power minus 1 वाला जो वेवलेंथ वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको हम लोग अल्ट्रावायलेट वेव्स कहते हैं। सो दैट इज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। देन दिस इज अल्ट्रावायलेट बैंड। देन देर इज वन इंपॉर्टेंट दैट इज विजिबल बैंड। विजिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हमारा, ये है हमारा 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक, ये हमारे आंखों से दिखता है। यानी हम लोग अलग अलग कलर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते। सो सूरज की जो रोशनी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, वहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है ऑब्जेक्ट से, वो रेडिएशन हमारा 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक का वेवलेंथ वाला होता है, और उसके जरिए हम लोग फिर अलग अलग कलर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में फिर आता है मिड इंफ्रारेड, जिसकी 1 माइक्रोमीटर वेवलेंथ वाली जो लाइट है उसको हम लोग बोलते हैं मिड इंफ्रारेड। देन फिर 10 raised to power 1 माइक्रोमीटर ऐसी जो वेव्स है, दैट वेव्स आर थर्मल इंफ्रारेड वेव्स। एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो हियर अप टू 1 millimeter माइक्रोवेव वेवलेंथ में बी देयर, एंड देन रेंजिंग फ्रॉम 10 raised to power 5 माइक्रोमीटर से लेके तो आगे के बीच में यहाँ तक का आप 10 raised to power up to 7, all these they are called as microwave. So these are called as microwave, having the 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 माइक्रोमीटर ऑफ द वेवलेंथ। और इसके यदि आगे जाएंगे तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ 10 raised to power 8 to 10 raised to power 9 माइक्रोमीटर है, 10 raised to power 8 to 10 raised to power 9 माइक्रोमीटर। So they are television or radio waves.
तो जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ के लेके अलग अलग हमारे बैंड है, अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग बैंड है, यानी अलग अलग रेंज है, यानी अलग अलग रीजन है। तो उसको हम लोग अलग अलग रेज के नाम दे सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर, cosmic rays may be there, X-ray may be there, gamma ray may be there, ultraviolet rays may be there, visible rays may be there, mid infrared rays may be there, thermal infrared may be there, microwave rays may be there, and television or radio waves are there. So all these waves we can sense with the help of different sensors. तो हम लोग सेंसर द्वारा जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी है और वो वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी क्या है ये हम लोग सेंस करते हैं। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सो इफ दिस इज देयर सो वेवलेंथ इज स्मॉल, ऐसे यदि वेव है तो उसकी वेवलेंथ और कम है, और यदि इस प्रकार से वेव ट्रांसफर कर रही है तो उसकी वेवलेंथ जो है ये ज़्यादा है। सो अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ वी कैन क्लासीफाई द दिस electromagnetic radiation. Now with this we have to understand that in this electromagnetic spectrum यानी एक पर्टिकुलर बैंड यदि हमने पकड़ा तो ये गैमा रेज का ये बैंड है, दिस इज कॉल्ड एज वन स्पेक्ट्रम। दिस इज एक्सरे स्पेक्ट्रम, यानी इतने माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ वाले रेज है उस रेज को हम लोग बोलेंगे एक्सरेज। सो दिस इज वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देन ये वाला एक बैंड है जहाँ पे यदि ये हमारी जो वेवलेंथ है वो इस रेंज में यदि है तो उसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम बोलेंगे। सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देयर आर वेरियस स्पेक्ट्रम्स आर देयर और दे आर कॉल्ड एज वेरियस बैंड्स आर देयर। नाउ एज यू कैन सी दैट द वेवलेंथ यहाँ पर 10⁻⁻16 है। सो दिस वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻16 अप टू 10⁻12 यहाँ तक का जो वेवलेंथ वाला बैंड है उसको हमने बोला है गैमा रेज। सो दिस इज वन स्पेक्ट्रम। नाउ इन दिस स्पेक्ट्रम यू कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है उनकी हर्ट्स के अंदर। सो यू कैन सी 10⁻25 हर्ट्स इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस गैमा रेज। तो ये गैमा रेज जो है ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज देयर फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। यहाँ पर आप देखेंगे 10⁻22। सो एज यू गो हियर एंड हियर अगेन दो वेवलेंथ आपकी यदि इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यहाँ पर। सो हियर द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर वेवलेंथ हमारी कम है और इधर वेवलेंथ हमारी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ यहाँ पर कम है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। सो इन दिस वे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज हैविंग द डिफरेंट स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी प्रोड्यूस एट ए रेंज ऑफ वेवलेंथ and can be categorized according to its position into the discrete region which is generally referred as electromagnetic spectrum। पर्टिकुलर एक रेंज यदि आपने कंसीडर कर ली वेवलेंथ की और उसकी फ्रीक्वेंसी की, सो इस एक रेंज को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रारेड। लाइक वे देयर आर डिफरेंट स्पेक्ट्रम इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Now depending on this, thus the electromagnetic spectrum is a continuum of the energy that range from the meter to nanometer in the wavelength travel at the speed of light। यानी ये electromagnetic radiation लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है and propagates through the vacuum like outer space also। तो ये एटमॉस्फेयर से भी ट्रैवल कर सकता है और एटमॉस्फेयर के बाहर भी जाके वो ट्रैवल कर सकता है। सो हियर ऑल मैटर्स रेडिएट ए रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो पृथ्वी पर जो भी ऑब्जेक्ट है या जो यूनिवर्स में भी सारे जो ऑब्जेक्ट है, ये हाँ ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं। सो दिस रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट वी नीड टू मेजर and that we are measuring with the help of sensors. So with the peak intensity shifting towards the progressively shorter wavelength
एट एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द मैटर। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट वेवलेंथ है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो उसकी ज़्यादा हाई है। इस प्रकार से ये रिलेशन जो है हमने देखा। सो यू कैन सी दैट इन जनरल द शॉर्टर वेवलेंथ इज देयर, इट इज हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड जनरली दे आर कॉस्मिक वेव्स। तो ये जो हमारे स्टार और गैलेक्सीज है वहाँ से कॉस्मिक रेज हमारे अर्थ पे आते हैं और जिसको हम लोग हमारे अलग अलग प्रकार के हबल दूरबीन या ऐसे प्रकार के सेंसर से हम लोग पता कर पाते हैं और तभी हमारे यूनिवर्स में काफ़ी दूर तक हमारे स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे है वो हम लोग पता कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बट हैविंग वेरी शॉर्टर वेवलेंथ। सो दैट इज द वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दूसरा स्पेक्ट्रम जो है हमारा वो है लॉन्ग वेवलेंथ। वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम कम है और उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव। सो यू कैन सी दैट रेडियो वेव बोले तो हमारा जो रेडियो स्टेशन होता है वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसीलिए रेडियो स्टेशन के सिर्फ पर्टिकुलर इलाके में ही वो रेडियो स्टेशन को आप ट्यून कर सकते हो, यानी वो वेव जो है रेडियो स्टेशन से छोड़ी हुई वेव वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, बिकॉज इट इज़ हैविंग ए लॉन्ग वेवलेंथ सो इट गोज अप टू द शॉर्ट डिस्टेंस, it goes up to short distance, and as cosmic waves they are having the short wavelength so they can travel to the longer distances. short wavelength है तो काफ़ी दूर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं, long wavelength है तो कम डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर सकते हैं। so depending upon these features of the electromagnetic spectrum we are trying to distinguish between the data sensed by our sensors. now here if you understand the various regions of the electromagnetic spectrum, तो जैसा कि हमने देखा depending upon the wavelength, suppose here if the wavelength is less than 0.03 nanometer, 0.03 nanometer I am talking about, so 10 raised to power minus 9 is the unit for that, so that they are called as gamma rays. So these gamma rays are having the wavelength of less than 0.03 nanometer. So incoming radiation is completely absorbed by the upper atmosphere and it is not available for the remote sensing. इसलिए रिमोट सेंसिंग में गैमा रेज का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये गैमा रेज कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जब जहाँ से भी वो आ रहे होंगे वहाँ पे। देन द अदर स्पेक्ट्रम वाज देयर दैट इज एक्स रे, सो इट इज हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 0.03 to 3 नैनोमीटर। 0.303 से लेके 3 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ वाले जो रेज है सो कंप्लीटली एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। सो इसीलिए एक्सरे भी कहीं से आ रहे हैं सो वो एटमॉस्फेयर में एब्सॉर्ब हो जा रहे हैं एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड इन द रिमोट सेंसिंग। तो इसका इस्तेमाल रिमोट सेंसिंग में नहीं हो रहा है। सो यू कैन सी गैमा रेज आर नॉट यूजिंग फॉर रिमोट सेंसिंग, एक्स रेज ऑल्सो नॉट यूज फॉर द रिमोट सेंसिंग। देन अल्ट्रावायलेट रेज आर देयर इन आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेज में भी देयर having 0.3 to 0.4 micrometer wavelength, 0.3 to 0.4 micrometer wavelength. So here the incoming wavelength is less than 0.3 micrometer are completely absorbed. 0.3 माइक्रोमीटर से नीचे वाले जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एब्सॉर्ब हो जाते हैं बाय द ओजोन लेयर। सो ऑन आवर अर्थ, अराउंड द अर्थ देयर इज ए वन ओजोन लेयर. So when that electromagnetic radiation is coming through that ozone layer, so ultraviolet rays having less than 0.3 micrometer wavelength, they are get absorbed by the ozone layer. So therefore they are not also useful for our remote sensing. Then photographic ultraviolet band is there. One band is there which is photographic band, so having 0.3 to 0.4 micrometer of the wavelength. 0.3 to 0.4 micrometer of the wavelength. So here they are transmitted to the atmosphere, detectable with the film and the photoreceptors, but atmospheric scattering is severe. तो ये जो अल्ट्रावायलेट बैंड है जो 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर का है, ये इसके अंदर स्कैटरिंग काफ़ी होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो छन के आता है देयर आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द एटमॉस्फेयर, सो इट इज गेट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गेट स्कैटर्ड, बट यू कैन डिटेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ सम photo sensors or film detectors. So that is possible.
so you can sometimes you can use, restricted use was there for this ultraviolet band. Then the important is visible band, जो हमारे आंखों को दिखाई देता है, ये ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बैंड है जहाँ पे उसकी वेवलेंथ 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक का है, और ये यहाँ से हम लोग इमेज विद द फिल्म एंड द फोटो डिटेक्टर्स यू कैन क्रिएट इंक्लूड द रिफ्लेक्टेड एनर्जी पीक ऑफ द अर्थ एट 0.5 माइक्रोमीटर। तो जो ये सारी चीज़ें जिस ऑब्जेक्ट से आने वाला रेडिएशन 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक का है, वो ऑब्जेक्ट हमारे आंखों को दिखाई देता है, रिमेंबर। सो दिस इज विजिबल इंफ्रारेड, और इसको हम लोग हमारे फोटोग्राफी से, जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जो उसके ऊपर भी कुछ सेंसिंग का केमिकल लगा होता है, तो वी कैन स्नैप दैट फोटोग्राफ और हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं हमारे कैमरा से। सो दिस इज द रेडिएशन हैविंग 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर ऑफ द रेंज। नाउ आफ्टर दिस, सो दिस इज ऑल्सो, ये तो हमारे आंखों से भी हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट कैमरा डिप्लॉय कर सकते हैं। सो यू कैन टेक द फोटोग्राफ बाय द हेल्प ऑफ कैमरा फॉर दिस विजिबल वेवलेंथ के लिए। सो इसके लिए तो आपको सिर्फ क्या है, फोटोग्राफिक सेंसर चाहिए बस। तो उस सेंसर के ऊपर लाइट गिर गया तो वो अपने आप से उसका फोटोग्राफ निकल जाएगा आपके पास में। सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो यूज टू कलेक्ट द डाटा। नाउ आफ्टर दिस there are other bands are there which is infrared band. So in the electromagnetic spectrum, the infrared band having 0.7 to 1 micrometer of the wavelength, 0.7 to 1 micrometer of the wavelength of that radiation. So here the interaction with the matter varies with the wavelength. जैसी अलग अलग wavelength होंगी उसके हिसाब से इसकी अलग अलग interaction होंगी, and atmospheric transmission windows are separated. So यहाँ पे हम लोग अलग अलग एटमॉस्फियर में ये अलग अलग इंफ्रारेड की वेवलेंथ यूज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ट्राई टू सेंस द ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर दैट देयर इज वन रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड बैंड। दिस रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड बैंड इज हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 0.7 to 3 माइक्रोमीटर, 0.7 to 3 माइक्रोमीटर। सो हियर द रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल दैट वी कैन सेंस विद द हेल्प ऑफ थर्मल सेंसर्स। थर्मल सेंसर के जरिए हम लोग ये 0.7 से 3 माइक्रोमीटर वाले जो रिफ्लेक्टेड आईआर बैंड है, उस वेवलेंथ से हम लोग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो पता कर सकते हैं। द बैंड फ्रॉम 0.7 to 0.5 माइक्रोमीटर इज डिटेक्टेबल विद द फिल्म ऑल्सो, इट इज कॉल्ड एज फोटोग्राफिक आईआर बैंड। तो ये 0.7 से 0.9 माइक्रोमीटर वाला जो बैंड है, ये हम लोग स्पेशल प्रकार की फिल्म इस्तेमाल करके भी फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हैं। Then after that the important is thermal infrared. Purely thermal infrared band is there which is 3 to 5 micrometer. ऐसा रेडिएशन जो रेडिएशन की वेवलेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर तक का है, उसको हम लोग कहेंगे थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन। Now here the principal atmospheric window in the 8 to 14 micrometer is called as thermal region. Here the image at this wavelength are acquired by the optical mechanical scanner, यानी ऑप्टिकल स्कैनर यूज किया जाता है, और ये 3 से 5 माइक्रोमीटर वाला वेवलेंथ यदि उसके ऊपर गिरी तो वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता करने के लिए डाटा कलेक्ट करता है। सो दैट इज यूजफुल फॉर अस। सो हियर द स्पेशल वीडिकॉम सिस्टम कैन बी यूज। माइक्रोवेव अप टू 0.1 to 30 सेंटीमीटर लॉन्गर वेवलेंथ कैन पेनिट्रेट द क्लाउड्स clouds, fog and rain, and image may be acquired in the active or passive mode. So here this 3 to 5 माइक्रोमीटर वाला जो बैंड है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऐसी माइक्रोवेव जिसका 0.1 से लेके 30 सेंटीमीटर तक का लेंथ है, ये वाली ऐसी माइक्रोवेव जो है ये पेनिट्रेट कर सकती है क्लाउड, फॉग और रेन को। यानी बारिश शुरू है या क्लाउड है या फॉग है, ऐसे एटमॉस्फेयर में यदि रिमोट सेंसिंग करना है तो आपको यहाँ पे 0.1 से लेके 30 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली माइक्रोवेव वाले सेंसर जो है वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे टू कैरी आउट द रिमोट सेंसिंग। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज द रडार। सो ये रडार वाले जो है 0.1 से लेके 30 सेंटीमीटर तक का, एज आई हैव सेड 0.1 to 30 सेंटीमीटर, दे आर माइक्रोवेव, सो दे कैन बी जनरेटेड बाय द रडार and thrown on the object, and whatever the radiation was there, that radiation of 0.1 to 30 centimeter that we can sense with the help of sensor.
तो ये माइक्रोवेव वाली रेंज काफ़ी हमारे लिए उपयुक्त है. सो इन द एयरपोर्ट वी आर यूजिंग द रडार्स एंड वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ wavelength microwaves. So active form of microwave remote sensing you can do with this range, and the radar images are acquired at the various wavelength band. तो यहाँ पे रडार इमेज, रडार को भी एक स्क्रीन लगा होता है और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट से वेवलेंथ आ रही है उसके हिसाब से एक पिक्चर भी आपका कंटिन्यूसली बनते रहता है. सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रडार माइक्रोवेव. एंड देयर आर सम अदर वेव्स हैविंग वेवलेंथ ग्रेटर दैन 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ जो वेव्स की है उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव्स. अब ये जो रेडियो वेव्स है इसका इस्तेमाल हम लोग हमारे रेडियो स्टेशन चलाने के लिए यूज़ करते हैं. और देयर आर सम ऑल्सो रेडियो वेव्स आर देयर दैट यू आर ट्राइंग टू डिटेक्ट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस. सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ portion of the electromagnetic spectrum is with the radio wave, and here some classified radars with the very long wavelength operate at this region, and that you can use for the detection of the various objects within this range of 30 centimeter wavelength. 30 centimeter wavelength, इससे ज़्यादा wavelength होगी आपकी. So in this way, depending upon the different wavelength, we can use the different electromagnetic spectral regions for the various purposes. Now with this we have to see that this wavelength region they are having various application for the remote sensing. ये जो अलग अलग प्रकार की wavelength हमने देखी उसका अलग अलग application है remote sensing के लिए. So we will see that. So here the visible region was there having 0.45 to 0.52 micrometer of the wavelength. तो ये 0.45 से लेके 0.52 तक जो माइक्रोमीटर वाली वेवलेंथ है इसका इस्तेमाल हम लोग पर्टिकुलरली ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट्स या ब्लू विजिबल रीजन जो है उसके रिमोट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो जनरली दे आर कोस्टल मॉर्फोलॉजी, सेडिमेंटेशन स्टडी, सॉइल एंड वेजिटेशन डिफरेंशिएशन, कॉनिफर्स एंड डेसिडुअर्स वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो ये जो अप्लीकेशंस है कोस्टल मॉर्फोलॉजी की स्टडी, सेडिमेंटेशन की स्टडी, सॉइल एंड वेजिटेबल डिफरेंशिएशन और कॉनिफर्स और डेसिडुअर्स वेजिटेशन का डिस्क्रिमिनेशन, ये करने के लिए हमें ब्लू विजिबल रीजन काम में आता है. एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द 0.45 टू 0.52 माइक्रोमीटर स्पेक्ट्रम सेंसर्स. तो ये वाले सेंसर, ये वाले वेवलेंथ को डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स का इस्तेमाल करके हम लोग यदि रिमोट सेंसिंग करेंगे तो हम लोग इस प्रकार के एप्लीकेशन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. देन अनदर वाज देयर विच इज ग्रीन विजिबल रीजन. सो हैविंग 0.52 टू 0.60 माइक्रोमीटर ऑफ द वेवलेंथ. 0.52 से लेके 0.60 माइक्रोमीटर वेवलेंथ वाला जो ब्लू अबला ग्रीन विजिबल रीजन वाला स्पेक्ट्रम है इसका इस्तेमाल हम लोग विगोर असेसमेंट, रॉक एंड सॉइल डिस्क्रिमिनेशन, टर्बिडिटी एंड बैथमेट्री स्टडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ग्रीन कलर का डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ से मिलेगा. सो दैट वे you can use for the different study this data collected by this visible region of green wavelength spectrum. Then the red wavelength spectrum was there having wavelength of 0.63 to 0.69. 0.63 से लेके 0.69 माइक्रोमीटर वेवलेंथ वाला जो रेड विजिबल रीजन वाला स्पेक्ट्रम है हमारा, इसका इस्तेमाल हम लोग प्लांट स्पेसीज का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए करते हैं. अलग अलग प्रकार की प्लांट की जो स्पेसीज है, सो फॉर दैट we are using this spectrum. Similarly we also use the infrared region. इंफ्रारेड वाले भी लाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए. सो वी यूज द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम विच इज हैविंग 0.76 टू 0.90 माइक्रोमीटर ऑफ द वेवलेंथ, एंड दिस टाइप ऑफ सेंसर्स टू कैप्चर दिस वेवलेंथ रेडिएशन इज यूज फॉर वेजिटेशन विगोर, बायोमास कितना है, डिलिनिएशन ऑफ द वाटर फीचर्स और लैंड फॉर्म और ज्योमेट्रिक जियोमॉर्फिक स्टडीज जो है ये सारी स्टडीज करने के लिए हम लोग ये वाला इंफ्रारेड वाला बैंड इस्तेमाल करते हैं. देन मिड इंफ्रारेड बैंड ऑल्सो वी कैन यूज हैविंग 1.55 टू 1.75 माइक्रोमीटर ऑफ द वेवलेंथ, एंड दैट इज जनरली यूज फॉर द वेजिटेशन मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसके लिए. देन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड स्नो एंड क्लाउड डिफरेंशिएशन. स्नो और क्लाउड सरीके सरीके दिखने वाले, लेकिन उसके अंदर फर्क करना है तो आपको ये मिड इंफ्रारेड वाली वेवलेंथ वाला
स्पेक्ट्रम यूज इस्तेमाल करके सेंसिंग करना पड़ेगा। सिमिलरली वेजिटेशन में मॉइस्चर कंटेंट कितना है या फिर सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये पता करने के लिए भी आपको ये मिड इंफ्रारेड सेंसर इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन देर इज अदर रेंज दैट इज मिड इंफ्रारेड रेंज हैविंग 2.08 to 2.35 micrometer of the wavelength, and this spectrum we can use for differentiation of the geological material and soil। अलग अलग प्रकार की मिट्टी, पत्थर, मुरूम, बोल्डर और जितने भी जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस है हमारे, उसके जो डिफरेंशिएशन है उसके लिए हम लोग ये मिड इंफ्रारेड वाला स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं। देन वी ऑल्सो यूज थर्मल इंफ्रारेड, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट। सो 3 to 5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ वाला जो स्पेक्ट्रम है दैट वी यूज टू टारगेट द हॉट टारगेट्स, जैसे कि आग लगी हुई है या वोल्केनो है, इसको हमको यदि जांचना है या उसका टेम्परेचर हमको पता करना है, तो उसके लिए रिमोट सेंसिंग के लिए हमको ये वाले माइक्रोमीटर के वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करके सेंसर से डाटा सेंस करना पड़ेगा। सिमिलरली थर्मल इंफ्रारेड हैविंग द माइक्रोमीटर ऑफ 10.4 to 12.5 माइक्रोमीटर ऑफ द वेवलेंथ दैट यू कैन यूज, दैट इज थर्मल सेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते, वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन के लिए कर सकते, और वोल्केनिक स्टडी करने के लिए ये वाला यूज कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस एप्लीकेशन रिक्वायर, you can deploy the sensor for capturing the radiation of different wavelength। अलग अलग वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सेंस करने के लिए हम लोग अलग अलग सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर इसी प्रकार से अलग अलग स्टडीज के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए वी कैन टेक द यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और रीजन्स। So here in overall, if we say that the electromagnetic energy is coming from the sun, so it is falling on the object and it can be defined by the energy balance equation। तो यहाँ पे जो EI है हमारी, दिस इज इंसिडेंट एनर्जी, यानी आने वाली ऊर्जा जो सूरज से आ रही है या किसी सोर्स से आ रही है। सो दिस इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू ER plus EA plus ET, वेयर ER इज रिफ्लेक्टेड एनर्जी। ER इज रिफ्लेक्टेड एनर्जी। जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है, यानी जो एनर्जी आ रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, तो वहां से कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दैट इज वन पार्ट। अनदर पार्ट इज गोज टू द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्ब्ड एनर्जी। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ विच दैट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, किस पदार्थ का जो ऑब्जेक्ट है वो किस पदार्थ का बना है, उस पर से वो कुछ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज गेट रिफ्लेक्टेड, दिस इज गेट रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज गेट एब्सॉर्ब। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी उतनी एनर्जी, एंड सम एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, सो इट इज अगेन गेट ट्रांसमिटेड। तो कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एब्सॉर्ब हो जाएगी, और ये तीनों को भी अलग अलग हम लोग गिनेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसर। सो वी आर पर्टिकुलरली मेजरिंग द रिफ्लेक्टेड एनर्जी and we are measuring the transmitted energy, so that we can understand that what object is there। So here the reflection, scattering, emission are called as the surface phenomena। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस कैसे है उस पर डिपेंडेंट है कि रिफ्लेक्शन कैसा होगा या स्कैटरिंग होगा कि इमिशन होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस इट डिपेंड्स दैट हाउ द एनर्जी इंटरेक्शन विल बी डन देयर। हियर बिकॉज these are the determined by the properties of the surface। प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है और ऑब्जेक्ट का रफनेस कैसा है, इस पे से डिसाइड होगा कि जो इंसिडेंट एनर्जी आ रही है वो स्कैटर्ड होगी कि रिफ्लेक्ट होगी कि उसका डायरेक्ट इमिशन हो जाएगा। सो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दैट। सो दीज आर द सरफेस फिनोमिनॉन। सो वी कैन आइडेंटिफाई द कलर एंड द रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट का कलर और रफनेस क्या है ये पता कर सकते हैं, because measuring the reflection or scattering or the emission of the energy। Then transmission and the absorption, they are volume phenomena। तो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई ये ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है। तो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है या कितने वॉल्यूम में है उसका अंदाजा लगाने के लिए हम लोग एब्सॉर्प्शन कितनी एनर्जी हो गई है ये यदि हमने सेंसर से पता कर लिया तो हम लोग उसका वॉल्यूम का पता कर सकते हैं। इन दैट रिस्पेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड सिमिलरली remaining energy which is not absorbed is what get transmitted। so transmitted energy पता करने से भी
हमको वॉल्यूम का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या हो सकता है. सो दिस अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज दीज आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से पदार्थों का बना है, इस पर ये डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और कितनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा. तो इसलिए वो पदार्थ किसका बना हुआ है ये भी हम लोग रिमोट सेंसिंग से पता कर सकते हैं बाय मेजरिंग द ट्रांसमिटेड एनर्जी एंड एब्सॉर्ब एनर्जी. हियर you can see that you can identify the density and condition of the object based on this data sensed by the sensor. अब ये सारे में हम लोग बहुत बात कर सकते हैं रिफ्लेक्टेंस की. किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट रेडिएशन आने के बाद में उसका रिफ्लेक्टेंस कितना है, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस इमिसिविटी. 1 माइनस इमिसिविटी. सो एक एग्जांपल के जरिए हम लोग यदि समझेंगे, सो इफ द रिफ्लेक्टेंस इज 1, यानी रिफ्लेक्टेंस यदि आपका 1 है, सो रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस इमिसिविटी 0 हो जाएंगी. सो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द टोटल एनर्जी इंसिडेंटेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय द सेंसर. तो जितनी एनर्जी गिरी उतनी एनर्जी डायरेक्ट वहां से रिफ्लेक्ट हो गई. सो रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस इमिसिविटी. सो रिफ्लेक्टेंस यदि 1 है, इसका मतलब इमिसिविटी आपकी 0 है, यानी इसका मतलब वहां से जितनी एनर्जी आपकी उसके ऊपर गिरी उतनी एनर्जी वापस मिल गई. सो यू कैन से दैट दिस इज एक्चुअली व्हाइट ऑब्जेक्ट और द स्नो हो सकता है, क्योंकि इसकी इमिसिविटी 0 है. स्नो जो है वो एनर्जी को इमिशन नहीं करेगा खुद होके, और जितनी एनर्जी गिर रही है उतनी पूरी की पूरी वापस हो जाएगी, सो ट्रांसमिट हो जाएंगी. तो उसका कलर व्हाइट हो सकता है क्योंकि वो कोई किसी प्रकार का एब्सॉर्प्शन नहीं कर रहा है एनर्जी का और 100% रिफ्लेक्टेंस कर रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है. सो देयरफॉर दिस यू कैन आइडेंटिफाई इट एज ए स्नो. इसी प्रकार से ये रिफ्लेक्टेंस और इमिसिविटी से हम लोग ऑब्जेक्ट को जांच सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल इफ रिफ्लेक्टेंस इज 0, यदि रिफ्लेक्टेंस आपका 0 है, इसका मतलब क्या है कि इमिसिविटी आपकी 1 है. इमिसिविटी 1 का मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब, यानी जितना लाइट गिरा उतना लाइट पूरा एब्सॉर्ब हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर. सो इमिसिविटी इज 1, सो 1 माइनस 1, रिफ्लेक्टेंस इज 0. तो रिफ्लेक्टेंस 0 है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो काले कलर का है. सो यू कैन सी दैट ए लैम्प स्मोक और ए ब्लैक ऑब्जेक्ट यदि होगा तो वो पूरा लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो सेंसर से डाटा मिल रहा है उसको हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि वहाँ से रेडिएशन एनर्जी कितनी आ रही है, स्कैटर्ड एनर्जी कितनी है, रिफ्लेक्टेड कितनी है, इमिटेड कितनी है, ट्रांसमिटेड कितनी है. इसको यदि अपने सेंसर से सेंस कर लिया तो उस पर से हम लोग ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है, सरफेस रफनेस कैसा है उसका वॉल्यूम या साइज कितनी है, उसका शेप क्या है और वो कौन से पदार्थ का बना है, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं. और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके एनर्जी को मेजर कर रहे हैं हम लोग सेंसर द्वारा, एंड देयर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और द फीचर्स ऑफ द सरफेस. सो हियर इन दिस वे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू लर्न अबाउट. तो अलग अलग वेवलेंथ आपको समझ में आ गई, अलग अलग रेंज आपको समझ में आ गई, तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के वेवलेंथ को कैप्चर करने वाले सेंसर हम लोग इस्तेमाल कर सकते, या फिर उस प्रकार का इंसिडेंट रेडिएशन हम लोग क्रिएट कर सकते और वहाँ से होने वाला ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको मेजर कर सकते हैं सेंसर द्वारा, और फिर उस डाटा को प्रोसेस करके जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है ये हम लोग पता कर सकते. सो हियर इन दिस लेसन वी हैव सीन दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देन how that electromagnetic spectrum is having the interaction with the various objects, and what is the energy balance equation that already we have seen that. So this EI is equal to ER plus EA plus ET. Incident energy is equal to reflected energy plus absorbed energy plus transmitted energy. So in this way we have understood what is electromagnetic spectrum. So we will stop for this lesson here. In the next lecture we will go to understand what are the various applications of the remote sensing. अभी तक हमने देखा कि what is remote sensing क्या है, and then how the electromagnetic spectrum is useful, what are the types of remote sensing, and now we have also seen that how the interaction is there
there are different stages are there in the remote sensing process. Now with all these, what actually use of that remote sensing data is there. तो रिमोट सेंसिंग के डाटा का इस्तेमाल करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द remote sensing. Till then, goodbye and thank you.